Hello, students. Good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in Maths Planet. Today, we are going to start chapter 7th of class 9th in mathematics. Okay, previously we have done chapter 1, 2, 3, 4, and 6. Okay, this is chapter number 7 named triangles. We will study in this session that what are triangles, which are the types of triangles, and how congruency between triangles is proved. Okay, some questions are also there in this video, so I request you to watch this video full till the end. Okay, before starting this session, I would like to request you to like this video and share it with your friends if you find yourself fruitful. Okay, so let us start. Triangle is any 2D shape which is bounded with three straight lines. जब तीन स्ट्रेट लाइंस से बाउंड होके कोई शेप बनती है देन दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल के बारे में आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा दैट ट्राइंगल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts on the basis of angles also and on the basis of sides also. First type on the basis of angle is acute triangle, in which two angles are acute. Okay, the triangle in which all angles or two angles are acute, then this type of triangle is called acute triangle. Now coming to obtuse triangle. Obtuse triangle में क्या होता है? If one of the angle in a triangle is obtuse, that is more than 90 degree, अगर एक एंगल more than 90 degree है then we will say that it is an obtuse triangle. Third triangle on the basis of angles we can say that it is right angle triangle. Right triangle भी बोला जाता है इसे, ठीक है. When one angle of a triangle is 90 degree then we can say that it is a right triangle. Okay, now if we talk about triangles on the basis of sides, then if three sides of a triangle are equal to one another, or we can say if all sides of triangle are equal, then this type of triangle is called equilateral triangle. First is equilateral triangle in which all three sides are equal. Second type of triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या होता है? When two sides of a triangle are equal to one another, then this type of triangle is called isosceles. इसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है. Now coming to third type of triangle on the basis of sides, we can say scalene triangle. When in a triangle any side is not equal to the other side, then these are called scalene triangle. Suppose one side of a triangle is of 3 centimeter, second side is of 4 centimeter, and third side is some other measurement, then we can say that it is a scalene triangle. So these were the types of triangle on the basis of angles and on the basis of sides. Now let us start congruency. Congruent figure. We will first learn about congruent figures. Congruent, when two figures have the same size and shape, then these are called congruent figures. Here you can see there are two triangles mentioned on your screen, angle triangle ABC and triangle DEF. So all the angles and all the sides are equal, then it is a congruent triangle. Okay, so any figure when these are coincide with each other, जब कोई फिगर किसी दूसरे के साथ में coincide करती है और overlap नहीं करती, then we can say that these are congruent figures. When two figures have same size and shape, then it is congruent figure. Now coming to congruent triangles. Two triangles are congruent if and only if their vertices can be matched up so that the corresponding parts of the triangle are congruent. Okay,
अगर हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर इंपोज करें और उसके सारे वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें और बिल्कुल मैच हो जाएं, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल के, और सारे साइड्स भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। Their corresponding angles are congruent because congruent triangles have the same shape। क्योंकि ट्राइंगल्स की शेप सेम होगी तो इसलिए उन ट्राइंगल्स के सारे एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव सेम साइज। क्योंकि ट्राइंगल्स का साइज सेम है इसलिए उसकी साइड्स का जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी और उनकी शेप सेम है इसीलिए उनके बीच के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाउ कमिंग टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल आर मार्क्ड अलाइक। हम लोग इसे डिनोट कैसे करते हैं? जो भी पार्ट्स आपके ट्राइंगल में इक्वल होते हैं उन्हें हम लोग सेम साइन से डिनोट कर देते हैं। Congruent triangles must be named in the same order of congruency। Yes, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। Here are 2 triangles on your screen, angle SUN and angle RAY। क्योंकि अगर S एंगल R एंगल के इक्वल है तो S की पोजीशन में दूसरे ट्राइंगल का R आना चाहिए। आप देखेंगे ट्राइंगल SUN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RAN। ओके, तो इसमें SUN और RAY ये क्यों लिए गए नाम? क्योंकि S R के करस्पॉन्डिंग इक्वल है, U A के करस्पॉन्डिंग इक्वल है और Y N के करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से नहीं देखना है कि जिसके साथ में जो वाला एंगल आ रहा है वो वाला इक्वल होगा, बट आपको किस तरह से देखना है उसके नेम के अकॉर्डिंग। आप फिगर में देखें एंगल N आपको एंगल A के इक्वल A के ऊपर ड्रॉ किया हुआ दिख रहा होगा, है ना, लेकिन एंगल A जो है वो N के इक्वल नहीं होगा। एंगल A किसके इक्वल होगा? U के इक्वल होगा। क्योंकि आप नेम देखेंगे SUN RAY तो U के करस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर आ रहा है? A लेटर। तो U एंगल A के इक्वल होगा, S एंगल R के इक्वल होगा एंड N एंगल Y के इक्वल होगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर। Now move to next part. When justifying statements by using the definition of congruent triangle, use this wording. Whenever you prove that 2 triangles are congruent, then you should use this type of wording. Corresponding part of congruent triangle are congruent. Okay, which is written as this. Corresponding parts of congruent triangles are congruent। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हम लोग एक बार ये प्रूफ कर देते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला दूसरे ट्राइंगल में सेकंड के इक्वल हो जाएगा और थर्ड वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल में थर्ड वाले के इक्वल हो जाएगा। Okay, so all parts of 2 triangles which are congruent will be respectively equal to each other। This was all about congruent triangles। Now if we talk about congruent polygons, जिस तरह से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं उसी तरह से बाकी के पॉलीगन हैं उन्हें भी कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। 2 polygons are congruent if and only if their vertices can be matched up so that their corresponding part are congruent। दो कोई भी पॉलीगन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके वर्टिसेस जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएं और साथ में ये बात का भी ध्यान रखना है कि बाकी के जो उसके पार्ट्स हैं वो भी दूसरे वाले के बिल्कुल इक्वल हो जाएं या सेम हो जाएं। इसीलिए हम लोग कहते हैं शेप और साइज दोनों चीजें इक्वल हैं तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन बोल सकते हैं। यू कैन सी इन द फिगर पेंटागन ABFGH एक पेंटागन है। इसी तरह से BCDEF ये भी एक क्या है? पेंटागन है। सो ABFGH एंड BCDEF these are congruent to each other because all the
साइड्स एंड ऑल द एंगल्स कोइंसाइड ईच अदर। ओके, कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम शेप ज्वाइन कर लेना। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, some ways to prove triangles are congruent. Okay, so how to prove that two triangles will be congruent? There are some conditions given on your screen that by applying which you can say that triangles are congruent. If these conditions are satisfied, you can say that triangles are congruent. आप इन conditions को observe करेंगे और अगर किन्हीं दो triangle में ये conditions satisfy हो रही हैं, then you can say that triangles are congruent. Okay, first condition you can see on the screen is SSS. S representing the side. Side postulate, that means if three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the triangle are congruent. अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों अलग अलग साइडों के इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, here are two figures you can see here, ट्राइंगल GOB एंड ट्राइंगल LET। GOB में आप देखें GO किसके इक्वल दे रखा है, LE के इक्वल दे रखा है, बिकॉज GO बार के ऊपर भी 2 मार्क कर रखे हैं और LE बार के ऊपर भी 2 मार्क हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से GB किसके इक्वल होगा, LT के, क्योंकि 3 मार्क्स GB के ऊपर भी दिख रहे हैं आपको और 3 मार्क्स LT के ऊपर भी दिख रहे हैं। इसी तरह से OB ET के इक्वल होगा if all three sides of a triangle are equal to the other three sides of another triangle, then these will be congruent triangles. How we write the congruent triangles? On the bottom of your screen you can see triangle GOB congruent to triangle LET. आप लोग congruent का साइन बहुत ध्यान से देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है दो ट्राइंगल्स के नेम्स के बीच में, इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट many of the times use wrong sign of congruency, so it can be a difficulty in your exam. Okay, marks can be deducted in your exam, so you should learn that how to put a congruency sign. This was the first condition of congruency. Now coming to second postulate. Second postulate you can see on the screen, side angle side. ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में जो पोस्टुलेट दे रखी है, जो रूल जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट दे रखी है, तो इसका मतलब साइड जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में और एंगल उनके बीच में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जब इस्टेब्लिश करेंगे कोई रिलेशन किसी फिगर के अंदर, तो आपको भी दो साइडों के बीच का एंगल लेना है। जो दो साइडें आप इक्वल लेंगे उन्हीं के बीच का एंगल आपको कंसीडर करना है। ओके, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ another triangle, then the triangles are congruent. अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दैट दोज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल नहीं, congruent. Those two triangles are congruent. Here are two triangles on your screen, JEN एंड PAK. ओके, JEN में देखेंगे JE लाइन, JE साइड जो है वो आपके PA साइड के इक्वल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार से रिप्रेजेंट किया गया है दोनों को। इसी तरह से EN साइड AK साइड के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर 2 बार से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से इन दोनों साइड के बीच का एंगल आप लोग बताइए क्या है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है इन दोनों के साइड के बीच में, E एंगल है ना। JE साइड और EN साइड इनके बीच का एंगल है E, और वो इक्वल है PA और AK साइड के बीच में इस्टेब्लिश एंगल A के। ठीक है, तो इस फिगर में अगर JE साइड PA के इक्वल है, EN साइड AK के इक्वल है और एंगल E A के इक्वल है, देन वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो आप लोग नीचे स्टेटमेंट देख भी सकते हैं, ट्रायंगल JEN congruent to triangle PAK. Okay, now coming to next postulate. एंगल साइड एंगल, जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था साइड एंगल साइड, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, इसी तरह से इस वाली पोस्टुलेट में क्या है, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब कोई दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके बीच की साइड, दो एंगल जो बनेंगे उनके बीच में जो भी साइड आ रही होगी दैट शुड बी इक्वल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. एक ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड, इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर अलग अलग एक दूसरे के इक्वल हैं, then we can say that it is these are two congruent triangles. ओके तो इस फिगर में जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है उसमें अगर हम एंगल ए बोलते हैं, एंगल ए एल के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एल, एंगल आर इक्वल टू एंगल वाई। ए और आर एंगल के बीच में साइड कौन सी आ रही है, ए आर साइड। एल और वाई के बीच में कौन सी साइड है, एल वाई साइड। सो वी शुड नो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल एल, एंगल आर इक्वल टू एंगल वाई एंड साइड ए आर इक्वल टू साइड एल वाई. Okay, if these three conditions are satisfied, then we can say that triangle CAR is congruent to triangle OLY. All right, so we have discussed about three postulates of congruency. पहली postulate क्या थी, SSS, साइड साइड साइड। अगर तीन साइड हैं दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से SAS, अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से थर्ड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच के साइड के इक्वल है, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, यू कैन गो थ्रू दैट. आप लोग देख सकते हैं फिगर दिया हुआ है, फिगर को ऑब्जर्व करें। पहले ट्राइंगल TMJ दे रखा है जिसमें आपकी एक TE लाइन MJ को E पॉइंट पे ज्वाइन करती है। ठीक, अब हम ऊपर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में गिवन डेटा क्या है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ MJ. MJ लाइन जो है उसका मिड पॉइंट है E. इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जब E मिड पॉइंट है तो ME पार्ट JE पार्ट के इक्वल होगा, है ना। ME पार्ट JE पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि E मिड पॉइंट है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या दे रखा है हम लोगों को, TE परपेंडिकुलर टू MJ. TE लाइन जो है वो MJ लाइन को जहां पे मिल रही है वो एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है. ओके, we have to prove that these two triangles, that means MET and JET will be congruent. ये हमें प्रूफ करना है. So on right side you can see the proof of this question. E is the midpoint of MJ bar. MJ bar क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी किसी लाइन सेगमेंट का नाम लिखा जाता है तो उसे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर जो लाइन दिख रही है उसे बार बोला जाता है। E is the midpoint of MJ bar. जब E मिड पॉइंट है देन पॉइंट नंबर 2 वी कैन से दैट ME इक्वल टू JE. दोनों ट्राइंगल में ME साइड JE साइड के इक्वल हो गई. ओके, कीप इट इन योर माइंड. अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, TE परपेंडिकुलर टू MJ. जब TE परपेंडिकुलर टू MJ है तो एंगल MET, ध्यान से देखिएगा ये वाला जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है, ये MET, ये वाला एंगल JET इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो आपको एक साइड ME मिल गई है और JE मिल गई है, एक एंगल मिल गया है. और दूसरी साइड क्या है, TE साइड इन दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो TE दोनों में इक्वल हो जाएगी, है ना. TE साइड इक्वल टू TE साइड, दिस इज कॉमन साइड इन द ट्राइंगल. सो वी कैन से दैट TE और ME
दो साइडें आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, पहले वाले ट्राइंगल में टीई साइड और एमई साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, और इनके बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ई। वो वाला एंगल जहां पे कर्सर दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के इसके इक्वल है। ओके, तो दो साइडें और उनके बीच का एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, आप लोग राइट साइड में देख भी सकते हैं, साइड एंगल साइड। Okay, so by side angle side postulate we can say that triangle MET congruent to triangle JET. Okay, learning how to extract information on segments or angles once it is shown that they are corresponding parts of कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हम लोगों को ट्राइंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसमें से हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, यू कैन सी अ गिवन फिगर on your screen. Okay, in given figure there are two triangles, triangle MAD and triangle MBC. Okay, given that AB and CD, AB लाइन आप लोग ध्यान से देख लें और CD लाइन देख लें। AB लाइन ये वाली है जहां पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, और CD लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है, CD। ओके, तो AB और CD लाइन एक दूसरे को M पॉइंट पे काटती हैं, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट ही नहीं बल्कि बाइसेक्ट करती हैं। वर्ड क्या लिखा हुआ, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, M। जब M मिड पॉइंट है तो आप AB लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करें जरा। AB लाइन कौन सी है, ये वाली। इस लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो AM पार्ट BM पार्ट के इक्वल हो जाएगा, AM इक्वल टू BM। ओके, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD पैरेलल टू BC। प्रूव दैट ये यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, AD पैरेलल टू BC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। रीजन इधर दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, और थ्योरी आपकी राइट साइड में दे रखी है। AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट M। ABCD एक दूसरे को M पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए M को हम लोग मिड पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। AB और CD साइड का मिड पॉइंट क्या है, M है। तो इससे हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पे कर्सर जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे देखिए एक बार, AM कॉन्ग्रुएंट टू MB। AM लाइन जो है वो MB के इक्वल है, AM ये रहा और MB ये रहा। ठीक है, इसी तरह से DM लाइन, DM ये वाली MC लाइन के इक्वल हो गई। तो AM और DM दो साइडें मिल गई हैं, अगर हमें इनके दोनों के बीच का एंगल मिल जाए ये वाला, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। AMD ये वाला एंगल और BMC ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो इस तरह से दो साइड्स AM और MD और उनके बीच का एंगल AMD। दूसरे ट्राइंगल में दो साइड BM और MC और उनके बीच के एंगल BMC के अलग अलग इक्वल हैं। सो कंडीशन ऑफ SAS, side angle side, is satisfied in this question. So we can say that angle A will be equal to angle B. एंगल A B के क्यों इक्वल है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होंगे, ये ध्यान रखें। फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट जो हैं वो करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होंगे। तो इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल में एंगल A सेकेंड वाले ट्राइंगल के पार्ट B के इक्वल हो जाएगा। ओके, A जो है वो पार्ट B के इक्वल हो गया, तो इसलिए, और ये दोनों एंगल आपको दिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो एंगल ये इक्वल हो रहे हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वी कैन से दैट AD पैरेलल टू BC। सो आई होप you are clear with these questions. Guys, this is all for today's session. I hope
you have understood that what is the concept of congruent triangles and how to prove a given condition in a question. Okay, if you like this video, then click on the like button. If you are new on the channel, then you can subscribe it and share it with your friends. In next session, we will discuss some more questions based on the same topic. Till then, take care. Thank you.